Okay, good morning to all of you, and well, we are back on air. So today being a Friday, you all might be a little bit relaxed. कि चलो ठीक है, थोड़ा सा वीकेंड का आनंद उठा सकते हो. वैसे मैं जब ऐसे कुछ बोलता हूँ तो जनरली फिर एक रिप्लाई भी आ जाता है, इज दैट कहाँ वीकेंड, क्लासेस तो चलता रहता है. हाँ ये तो है, मैं वो मना नहीं कर रहा हूँ, है ना. क्लासेस तो देखो चलता ही रहेगा. चलो एनीवे, I've just got the messages. Good morning messages. Dhairya, प्रत्यक्ष, कुश, जय, मनन, दिव्यम, रोहन, निझावन, कार्तिक. And as expected, Divyam has to start with his comments. And that is, आज तो पढ़ने का ही मन नहीं है, क्योंकि आज तो वीकेंड जैसे लग रहा है. अच्छा, so you can enjoy a season even when it has not arrived. Huh? Okay, morning Dhruv, Akshit, Dudeja. चलो तो like we were in the middle of discussing a topic on optics, and we were discussing on shadows. ठीक है ना. तो shadows से अब image पे चलते हैं. Let's talk about image formation in case of plane mirrors. We are talking about now plane mirror. So today we are going to talk about reflection. In a plane mirror. ठीक है ना. तो वही इंसिडेंट रे है ना, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, दे विल ऑल लाई इन द सेम प्लेन वगैरह वगैरह जो भी था, उसमें कोई चेंज नहीं है. वो सब तो है ही है. प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, है ना. तो दोस आर आल्सो डन. दैट आल्सो यू नो, नथिंग अननोन हमें. ठीक है ना. व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, सब ब्लर्ड आ रहा है मेरे इसमें. मैं समझ गया. लेट मी जस्ट गिव मी अ मिनट. मैंने ना शायद, ठीक है, वो एक्चुअली मोबाइल डेटा पे था, अभी मैंने चेक किया तो उसको अभी वाईफाई पे कर. चलो, वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर. So let's start off with this question, and that is, let's say there is a plane mirror. And there is an object which is moving with, let's say, 3 meters per second towards the plane mirror, perpendicular to it. So in that case, this is suppose the object, and there will be obviously an image also. That will also move. So my question is, if the velocity of the object is given, what is the velocity of the image? What is the velocity of the image with respect to object? And what is the velocity of the image with respect to mirror? By the way, इस case में velocity of mirror 0. So the mirror is at rest now. Okay. So in this case, what I've given is that the mirror is at rest. Okay. And the object is moving with 3 meters per second on this direction. So VO is 3 I cap. To find out the image with respect to object and image with respect to mirror. So these are the things that you have to find out. I think easy question to start off with. Let's quickly get over with this, then we will have something else. जल्दी करो. ओके ठीक है. ध्रुव पाठक ने इमीडिएटली आंसर दे दिया, -3, -6 और 3, -3. ठीक, आई थिंक दैट्स राइट. इस केस में क्या होगा ना, जितना फास्ट ये मूव करेंगे उतना ही फास्ट ये मूव करेंगे, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो देखो, अगर ये 3 मीटर पर सेकंड है तो ये भी 3 मीटर पर सेकंड ही होगा. ठीक है ना, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो दिस विल बिकम -3 I cap. Image with respect to object, so -3, -3. So -6 I cap. Image with respect to mirror is also -3 I cap. That's too easy. Let's move on. Second question. Second question is that suppose the object is moving with, or rather, let's put the object at rest. Okay. And the mirror this time is moving with, suppose, 2 meters per second. So this time there is a change. Change is that in meter per second. So like the change is that, let's say the mirror is moving with 2 meters per second. Let's just put it as vector form, 2 I cap.
Object this time is 0. So object is at rest. Mirror is moving. And the mirror is moving parallel to itself. फिर इसके results क्या होंगे? जल्दी बताओ. सीक्वेंस में दे दो तीनों इकट्ठे. धैर्य गुप्ता ने एक आंसर दिया, बट मैं कहता हूँ तीनों इकट्ठे दे दो. That would be better. Okay, push has given 2 to 0. There has given only one answer. 442. Okay, Jay Bhatnagar has also given 442. Dhruv Pathak has given 220. Okay, the interesting point here is that if the mirror is moving with 2 meters per second, then the image will move with double the speed, 4 meters per second. तो वो image का हो जाएगा 4i cap, image with respect to object हो जाएगा 4i cap, और image with respect to mirror हो जाएगा 2i cap. Because 2-3 people went wrong. वैसे तो काफी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, सत्यम ने करेक्ट दे दिया, ठीक है ना. तो कईयों ने करेक्ट तो दे दिया, लेकिन क्योंकि 2-3 जनों ने गलत दिया, तो लेट मी एक्सप्लेन इट. So the explanation is like this, that let's say this is the object, and let's say this is at a distance of x. So the image is also at a distance of x. So this is the image. This is the object. This is I. If the mirror shifts by suppose a small distance, I mean large also it may be, by suppose d. So in that case, the object distance becomes now x plus d. So from the mirror, the image distance will also become x plus d. Yeah? So the image will be now here. So this is I, this is I dash. Okay? Image location is shifted. Let's do one thing. Let's find out the object image distance initial. So object to image distance initial is what? 2x. But later on it became what? X plus d plus x plus d. So it became 2x plus 2d. So that means when the mirror is shifted by d, the image is not shifted by d. The image is shifted by 2d. क्यों? ये देखो ना, पहले ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस 2x था, अब तो 2x plus 2d हुआ ना, यानी मिरर यानी सॉरी इमेज कितना शिफ्ट किया? That means image has shifted by 2d. So the mirror shifts by d, the image shifts by 2d, and one more thing, in the same direction. That is also important. ठीक है ना? That's the net result. तो इसलिए ये वाला रिजल्ट है. That means एक नेट मोटा मोटा रिजल्ट ये आ रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ किसी वेलोसिटी से जाता है, तो इमेज उसके ऑपोजिट वेलोसिटी से जाता है, और अगर मिरर किसी एक वेलोसिटी से जाता है, तो इमेज उसके डबल वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में जाता है. That's the net conclusion. What about vertical movement? For example, let's see if I make it as suppose 5j cap with the mirror at rest. So this is the image. So what will happen to the image? So this time the question is different. It is 5j cap. So mirror is at rest, object 5j cap. J cap means parallel to the mirror. ठीक है ना? Then what happens? Then what happens to this? Comma comma देके तीनों का आंसर दे दो फटाफट. These ones. Manan Dangwal has immediately given an answer 505. Okay, Jay Goyal has also given the same answer 505. ठीक है. Now whoever is giving Kush, Dhairya, Jay Bhatnagar, everybody is giving the same answer, that is 505. That's right. Actually, see, if the mirror is at rest and the object is moving with 5j cap, that means the image will also move with 5j. That's the first thing. And once this is found out, rest is pretty easy. So ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 5. ठीक है. Okay, last combination. Last combination is when the object is at rest. So object is 0, but the mirror is moved up with, let's say, 3 meters per second. So this time the mirror is
3j cap. Then what happens? So this is the fourth and final case. इसके बाद हम generalize कर सकते हैं. अब क्या हो जाएगा? Object at rest. Okay, already answers आने लगे. जय भटनागर 00 -3, 00 -3 by Kush, Karthik, Jay, Goel, everybody. ठीक है, that's right. इस बार क्या होगा ना, इमेज वही का वही रहेगा. ठीक है, देखो अगर एक मिरर मैं लेता हूँ और अगर मिरर को सिर्फ ऊपर नीचे ऐसे करता हूँ विदाउट टर्निंग कर दिया तो अलग बात होगी. That's a different case altogether. I'm talking about only shifting like this. In that case क्या होगा, इमेज तो मेरे सामने ही दिखेगी. So the image does not shift. So the image is at rest. So image with respect to object, that is also at rest. But image with respect to mirror is this minus this. So it will become -3j. Okay? Chalo. So therefore now we can do what we can do is that we can combine all these ideas and get a final question. And that is like this. And let's say there is an object which is moving with 10 meters per second. 37 degrees. And this is a mirror moving with 5 meters per second at 53 degrees. And one more thing. The mirror is moving parallel to itself. It is not turning it. Turning होगा तो फिर कहानी अलग होता है. So mirror shifts, suppose parallel to itself. ये 10 मीटर पर सेकेंड और मिरर मुड़ नहीं रहा है. मिरर ऐसे पैरेलल. Yes. So I can write down their details. I mean, then later on you can manage the other things. ये हो गया 8 i cap minus 6 j cap ऑब्जेक्ट. और मिरर का हो गया 5, तो यानी 3 i cap plus 4 j. So now you have to say what will be the velocity of the image, and once image is found out, the rest is I think easy. Go ahead. Okay, Jay Goyal has given the first answer, minus 2 i cap minus 6 j cap. Okay, some answers have already started coming in. Jay Goyal, Jay Bhatnagar. I was actually thinking of taking attendance, but I think
ठीक है। तनेश, अक्षय, तन्मय, मनन डंगवाल, कार्तिक, ध्रुव, जय भटनागर, जय गोयल, सबने आंसर तो दिए हैं। लेट मी क्विकली गेट थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलोसिटी इमेज। वेलोसिटी इमेज में क्या होगा, देखो ये जो 8 आई कैप है इसका -8 आई कैप हो जाएगा, और ये जो 3 आई कैप है इसका हो जाएगा +6 आई कैप। इन ओवरऑल आ गया -2 आई कैप। और जहां तक जे कैप की बात है, मिरर के जे कैप से तो कुछ होना नहीं है, जो होगा ये वाला जे कैप से होगा, है ना, -6 जे। See, once the image is found out, rest is just a formality. So -2 I cap, -6 J cap is the net answer. ठीक है। इसमें कई सारे आंसर्स आ चुके हैं, तो लाइक सबका तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, पर अभी जितने स्क्रीन में मुझे दिख रहा है उतने में जय भटनागर का नाम दिख रहा है, ध्रुव, मनन डंगवाल, तनिष और अक्षय जुडेजा, इनके मुझे सही दिख रहा है। ठीक है, अब तन्मय जना ने भी अच्छा सही आंसर दे दिया। ठीक है, गुड। यानी क्या हो गया, आई विथ रेस्पेक्ट टू इमेज में कब, अब इसको माइनस करें, है ना, तो यानी -10 आई क्या, और ये तो होना नहीं है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो मिरर के हिसाब से देखो तो -5 आई क्या, -10 जे का, दैट्स विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है ना, तो ये आ गया आई ओ एंड आई एम, दैट इज इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इमेज विद ऑब्जेक्ट। बट असली चीज तो ये है, velocity of the image per se, absolute velocity, because once that is found out, rest can be easily calculated by using simple physics rules. ठीक है ना, चलो, so that was about the first thing. Second is like this, that suppose there is a mirror which is at 37 degrees. Now there is a line here which is x equal to suppose 20. Okay. Question is where should I put an object? So to find out the value of y. ठीक है ना, find y so that image is on x-axis. I hope you have seen the geometry of the figure. I mean,
So now let me check the answers if there is any. इसका आंसर अभी आया नहीं किसी को भी. Okay, सत्यम ने पहला आंसर दिया, that is 480/7. Okay, कई सारे आंसर आ गए. 480/37, 480/7, 3.2, 480/57 भी आया है. फिर 3.2 एक और आया है. 540/11, -10, -10 कैसे आ सकता? मैंने तो ऊपर दिया ना. 480/57, 480/57 और 480/37 कई सारा आया हुआ. चलो ठीक. चलो तो how much will this be first of all? है ना? This will be 3/4. है ना? और tan 37 is 3/4. So that means this is 15. So this will be y minus 15. And this is 37 degree. So this will be 53 degree. This will also be 53. So this side is now known. ठीक है ना? ये 53 हो गया. तो ये भी 37 डिग्री हो गया. और ये आ गया राइट एंगल ट्रायंगल. अब देखो ये अगर 37 डिग्री हुआ, 90 डिग्री, तो ये 53 डिग्री हुआ. अगर ये 53 डिग्री हुआ तो ये तो y है, पूरा y है. तो ये कितना हो जाएगा? 4/3y. ठीक है ना? तो ये हो गया 4/3y. इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा, x कोऑर्डिनेट, वो हो जाएगा 20 प्लस 4/3y, 0. ठीक है ना? दैट इज द कोऑर्डिनेट्स. और इसका मिड पॉइंट इस लाइन पे लाई करेंगे. इसका मिड पॉइंट क्या हो गया? नहीं सॉरी, हाँ ठीक है. 20 का प्लस दिस, 0. ठीक. फिर इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? 20 प्लस 20, दैट इज 20 प्लस 2/3y. तो ये पॉइंट हो जाएगा 20 प्लस, या एक काम करो, इस पॉइंट को ए नाम दे देता हूं या पी नाम दे देता हूं. तो पी क्या हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा दिस प्लस 20/2. तो दैट इज 20 प्लस 2/3y. और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा दोनों को मिला के? 0. इसका तो y कोऑर्डिनेट 0 है और इसका y कोऑर्डिनेट y है. तो 0 प्लस y/2 होना पड़ेगा, है ना? द अदर इज y/2. तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो इस मिरर पे लाई करना चाहिए. तो दैट मींस इनका जो y और x है, दैट शुड बी व्हाट? y/x शुड बी इक्वल टू, क्या बोलते हैं, y/x शुड बी इक्वल टू tan 37 डिग्री, दैट इज 3/, है ना? तो अब मैं लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ 3/4, दैट देयरफॉर इज इक्वल टू y/2 अपॉन 20 प्लस 2/3. यानी 60 प्लस 2y शुड बी इक्वल टू, इससे तो कुछ आया नहीं. तो y इज इक्वल टू 0 आ गया. 0 इज इक्वल टू 0 आ गया. तो इससे तो नहीं निकलेगा, कोऑर्डिनेट से तो नहीं निकलेगा, कुछ और करना पड़ेगा, है ना?
और वहां पे शायद 20+3/4y होगा। हाँ वो जो आपने 4/3y निकाला वो 3/4y होगा। ये वाला यस सर। y तो ये y हो गया और इसको x मान लो, चलो फिर y/x 4/3x 3/4। अच्छा वही ठीक, ये अलग होगा। तो 20+3/4y, तो ये हो जाएगा तुम्हारा जो है 3/8 हो जाएगा। ठीक, ये गड़बड़ था। तो लाइक 20+3/8y हो गया और ये आ गया y/2, यानी चेंज कर। ठीक है, तो 60 + 9/8y इज इक्वल टू 2y, है ना। राइट, यानी 60 इज इक्वल टू 2 - 9/8 इंटू y, यानी 16 - 9 is 7/8, यानी y इज इक्वल टू, जरा कैलकुलेशन चेक कर लेना। 16 to 8 by 16 minus 7 is 7, 60, ये 480/7 आ। एक बार मेरा भी कैलकुलेशन चेक कर लो, जैसे एक मिस्टेक तो यहीं पे था, ठीक है ना। तो चेक कर लो, यानी y का वैल्यू कितना आ गया इस केस में ना, इक्वल टू 480/7। हाँ वो मिस्टेक था, ठीक है, वो समझ गया बात। हाँ 480/7, लेकिन 480/7 किसी को भी नहीं है, बहुत सारे कैलकुलेशंस है। हाँ नहीं, 480/7 धैर्य का आया था। 480/7 has been got by धैर्य, और कोई 480 तो खैर कईयों का है, बट वो 37 वगैरह है ना। So therefore in this case the value of y should be equal to how much ना, 480/7। तब जाके क्या होगा, इमेज जो है x एक्सिस पे बनेगी। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, एंड दैट इज, आई होप आई कैन रब इट ऑफ, एंड दैट इज सपोज मैं एक वो दे देता हूं, लाइन दे देता हूं, x और y ये हो गया, और लेट्स से कोई एक लाइन है, कुछ भी लाइन ले लो, सपोज y इज इक्वल टू 2x + 6, दिस इज अ लाइन। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, एंड दैट इज सपोज -4, -20, -4, 20। तो इसका इमेज निकालना है कहां पे, फाइंड द इमेज कोऑर्डिनेट्स। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ये स्ट्रेट लाइन, ये मिरर है, दिस इज द मिरर। टू फाइंड इमेज कोऑर्डिनेट्स, ये -4, 20 है, दिस ऑब्जेक्ट, यू फाइंड आउट द इमेज कोऑर्डिनेट्स।
वैसे बाय द वे मुझे इस पिछले क्वेश्चन को एक और तरीके से भी बताना था, मैं भूल ही गया। चलो दोनों इकट्ठे डिस्कस कर लेंगे। एक दो आंसर आ चुके हैं। अक्षित ने आंसर दे दिया 68/5 कॉमा 56/5 और तन्मय जना ने भी यही आंसर दिया 68/5 कॉमा 56/5। ठीक है, लेट्स चेक इट। नाउ मोर आंसर्स हैव कम। आर्यन साहू का आंसर भी वही है, कैंसिल करके वही आ रहा है। ठीक, it's fine. I mean, the thing is that there are two things now. One is that इसका जो मिड पॉइंट होगा वो इस लाइन पे लाई करेंगे, है ना। तो इसका मिड पॉइंट होगा क्या, -4 + x/2। तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा -4 + x/2 कॉमा 20 + y/2। अगर h के यूज करते हो तो h के, और इसको मुझे यहाँ पुट करना है, यानी y which is 20 + k/2 is equal to 2x, 2 into -4 + h/2 + 6. So that's the first equation. अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इन दैट केस हो जाएगा 20 + k is equal to -8 + 2h + 12, यानी k is equal to k -2h minus 8 + 16, 20 - 12, 8 + 16 is equal to 0. That's the first equation. सेकेंड इक्वेशन ये है कि इसका जो स्लोप होगा वो होगा -1/2। इसका स्लोप, क्यों, ये परपेंडिकुलर टू द लाइन है, तो दैट मींस स्लोप इज k - 20/h + 4 इज इक्वल टू, इसका स्लोप तो +2 है, तो इसका स्लोप क्या होगा, -½ है ना। तो दैट इज -½ अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2k -40 इज इक्वल टू -h - 4। ये इधर लेके आ जाऊंगा तो हो जाएगा 2k + h, 2k + h, ठीक है ना, -36 इक्वल टू 0। मैं काम करता हूँ, इसको डबल करके लिख देता हूँ तो ये जगह 4k + 2h -72 इज इक्वल टू 0। तो 4k + k, अब दोनों का ऐड करूंगा तो -2h + 2h खत्म हो जाएगा, k + 4k 5k, 72 से 66 -56 is equal to 0. That means k is equal to 56/5। ठीक है ना, ठीक है, यही सबका आ रहा है। तो लाइक y कोऑर्डिनेट आ गया 56/5, उसके बाद जो है इसको पुट करके, है ना, किसी में भी पुट कर लो, इसमें पुट कर लो, चलो h is equal to 36 - 2k, so
therefore h is equal to 26 minus, the rest you can find out. 26 minus 112 by 5. Yeah. So 5 3s are 15, 180. 180 minus 112. Then 68 by 5. That's right. ठीक है ना? Then 68 by 5, 56 by 5 is the right answer. और ज्यादातर लोगों ने यही आंसर दिया, तन्मय, आर्यन, कुश, रोहन, मनन और इसके पहले भी. चलो ठीक है. एक्चुअली ना ये वाला मेथड में इस पे भी अप्लाई कर सकता था. लॉन्गर शॉर्टर तो मेन चीज नहीं, मेन चीज है कि और तरीका है सोचने का इज दैट कि देखो इसका इक्वेशन ऑफ द लाइन मिल जाएगा, है ना? इसका इक्वेशन ऑफ द लाइन मिल जाएगा कैसे ना, इसका तो 37 डिग्री था, है ना? तो यानी 3/4, यानी इसका स्लोप हो जाएगा -4/3. तो लाइन थ्रू 20, h having a slope of -4/3. वो लाइन मिल गया, तो इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, उसका x इंटरसेप्ट, और फिर x इंटरसेप्ट को लेके द मिड पॉइंट का इक्वेशन आ जाएगा, और फिर y/x. मतलब कहने का मतलब है कि वो भी एक मेथड है, ऐसे नहीं कि जो मैंने सजेस्ट किया या that's the only way of thinking. The other way of thinking could be that we can draw an equation of the line. तो कोई भी इक्वेशन ऑफ द लाइन मिल जाए तो इसका x इंटरसेप्ट मिल जाएगा, तो उसका x इंटरसेप्ट मिल जाएगा, y तो खैर 0 है, उसका मिड पॉइंट आ गया, इसका और इसका मिला के मिड पॉइंट आ जाएगा. और एक बार मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाए तो this by this is tan 37 degree. So that's another way of thinking. ठीक है ना? So that also is something that you can do at your own spare time. I'm just saying that these are the methods available, and rest is up to you to do whichever way you like. ठीक है? चलो, so that was about your reflection in case of a plane mirror. एक और चीज हम जानना चाहेंगे is that number of images in case of 2 mirrors. अगर एंगल थीटा पे है 2 mirrors, in that case number of images कितने होंगे? उसका एक पूरा सिस्टम है, पहले हम लोग एक इंटरमीडिएट नंबर निकालते हैं, that is 360 by k. This is the greatest integer function. Because sometimes you might get fractional part also. So I'm going to only take the greatest integer function. So that's kn. Depending on whether k is odd or even. If k is odd, तब तो कोई दिक्कत नहीं. If k is even, then in that case, so then n is equal to k. If k is even, then n is equal to k minus 1. Rather, let's put it here. N is equal to k minus 1 if object is on the angle bisector. Otherwise, this is if object does not lie on angle bisector. Obviously, if it does not lie on the angle bisector. ठीक है? So that's the scheme of things. So first of all, 360 by theta का greatest integer function, and then if it is odd, तब तो n is equal to k आ गया, no problem. अगर even होता तो in that case further split हो जाएगा, k minus 1 होगा अगर object angle bisector पे है तो, और n is equal to k हो जाएगा if object does not lie on the angle bisector. So that's the entire scheme of things. इसलिए काम करता हूँ मैं, थीटा बता देता हूँ और तुमको बताना है नंबर ऑफ इमेजेस. ठीक है? तो लेट्स से थीटा 10 डिग्री से स्टार्ट करते हैं. 10, 20, 30, 40,
50, 60, 70, 90, 120. Quickly get the number of images then. Okay, just for the information of everybody, and you must have already seen. So I just thought that let's have a small chat on that. And that is, we have with us a new student, and that is Shreyansh. Okay, na? Shreyansh, are you audible? Can you switch on your microphone? Can we have a small talk? Yes, Shreyansh. If you are active. Yes, Shreyansh. Can Yes, you hear sir. me? Okay, Shreyansh, can you tell us a little bit about yourself in the sense that, because you are not in 11th, that's why the curiosity is there. So where are you from, and a little bit about yourself, so that others can also know you a bit, and including me as well. Are you from the same school by any chance? No, sir. Okay. Your class till class 10th, where have you done your schooling? Yes, sir. Huh? I have done from till 10th. I have done from MVN, sir. Till 10th MVN. Okay. And then 11th? Then the 11th and 12th I have done non-attending, sir. 11th you have done non-attending. Non-attending. 12th also. Okay. Then after that, so like you change your plan. No, sir. I am currently in 12th only. No, that is understandable, but you see the non-attending type. Yes, sir. Okay, fine. Chalo, theek. So like non-attending which school? It's a Delhi school, sir. JN International. Okay, Delhi school. Yeah. There are many schools. Even in Faridabad also, I think there are 1 or 2 schools. Yes, sir. Okay, so like what has been your academic this thing? In the sense ki, what all chapters have you done in class 12 till now? Same till I have not done AC, but till EMI I have done. Okay, till EMI you have done, you have not done AC. AC, yes, sir. Fine. Okay, if you are interested, in that case, what you can do is that all these lectures are also, you must have seen, they have been uploaded in the YouTube. Yes, sir. So if you want to revise AC quickly, what you can do is that you can just go through. I think AC we have done what 4 or 5 lectures. I think. Yes, sir. I have 6. seen that. That is around 4 to 5 lectures only. I have seen that. So like if you're interested, then maybe you can just go through them once. Okay, and optics anyway you are attending from the beginning, so I don't think there should be any issue. Yes, sir. है Okay, sir. चलो ठीक है okay. Now Divyam's curiosity cannot die. So Divyam has asked कि ये कौन है? So वैसे by the way it's little surprising कि दिव्यम तुमने अभी तक ये डिटेक्ट नहीं किया और मैंने पॉइंट आउट किया कि that there is somebody Shreyansh who is new. ठीक है ना? चलो and Manan also has questions, and that is क्या 12th में school change हो जाता है registration ये वो. The thing is that yes, everything is there. अच्छा. Okay. Aryan says कि मुझे लगा शायद वो श्रेयस है with wrong spelling. चलो समझ गए. Okay, Divyam's query is still continuing. New admission, ये वो. चलो, these are things. Let's put that aside. Let's now focus back on academics. चलो इसका शुरू करते हैं. तो like इसका क्या हो जाएगा? पहले वाले 10 डिग्री क्या होगा? Jay Goyal has given the answer of 35,36. 20 डिग्री का
20 डिग्री का. Now Karthik has asked the right question, that is on the angle bisector है या नहीं है. That's the right question. See, the thing is that this I cannot comment, but yes, because nothing is given, so I can give the answer as 35, 36, 17, 18, 11, 12. This is 9. There is no issue. At 30 degree also, 360 by 30 degrees what? 12. So I cannot be sure, because if it is on the angle bisector, then it will become 11. If it is not on the angle bisector, it will become 12. So that's the case. 40 पे 9 हो गया, 50 पे जो है 7 हो जाएगा, 60 पे हो जाएगा 5,6, 70 पे 5, 90 पे 3,4, 120 पे 3. ठीक है, चलो ठीक है. मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा. दैट इज, सपोज मैंने क्या किया, एक वॉल है, I mean this is a room actually. This is a room in which I am just mentioning A, B, C, D, E, F, G, H. तो मैंने क्या किया, A, B, G, F, A, F, E, D और A, B, C, D, ये तीनों पे मिरर लगा दिया. ये तीनों सरफेस पे मिरर लगा दिया. A, F, E, D, मतलब ये साइड वाला वॉल, फिर ऊपर वाला A, B, G, F, ऊपर वाला A, B, G, F, और बैक साइड वाला यानी A, B, C, D. तो बैक साइड, ये तीनों सरफेस पे मिरर लगा दिया और एक ऑब्जेक्ट को इस कमरे के अंदर कहीं पे प्लेस कर. तो हाउ मेनी इमेजेस? यानी इस बार 3 मिरर्स है, एक छत पे, एक सामने वाले वॉल पे और एक वाला बैक वाले वॉल पे. अब इन तीनों मिरर के सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया. Tell me what will be the number of images? Vedanta has asked ki, what do you mean by being on the angle bisector? Okay. देखो सपोज जैसे ये वाला ले लो, 30 डिग्री वाला ले लो. 30 डिग्री वाले में क्या होता है एक्चुअली, मैं लेट मी एक्सप्लेन हाउ डज दिस मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस एक्चुअली. तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो मिरर है ना, ये थीटा एंगल पे, इसके यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ और इसको रेडियस लेके एक सर्कल बना दो. You might say, why are you making the circle as better as possible? That's to make you understand or feel the concept as to how exactly it has come. So I'm trying to make my circle as better as possible. So these are two mirrors. Now this is not on the angle bisector. So therefore, इसका एक इमेज बनेगा यहाँ पे. तो अगर मान लो ये अल्फा एंगल है ना, तो देखना अल्फा एंगल पे एक इमेज बनेगा. ये हो गया पहला इमेज. सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा. तो देखना उतने ही एंगल पे एक और इधर बनेगा, तो वो इमेज बन जाएगा ऐसे. फिर ये अल्फा एंगल पे हुआ, फिर ये जो इमेज बना ये इधर हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा एंगल पे. तो थीटा प्लस एंगल अल्फा एंगल पे देखना एक इमेज यहाँ पे भी बनेगा. So that's how actually multiple images are formed on this side. ठीक है ना? That's how multiple images are formed from either side. तो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, फिर I3 हो गया. अब ये इमेज इधर कितना एंगल पे बनेगा वो देख लेना, और फिर इस मिरर के लिए फिर एक और इमेज यहाँ पे बन जाएगा. फिर ये कहीं ना कहीं बैक साइड में आ जाता, तो इमेज फॉर्मेशन उसके बाद बंद हो जाता. ठीक है ना? दैट्स द पॉइंट. इसलिए इमेज कई सारे बनेंगे.
लेकिन अगर एंगल बाइसेक्टर पे बनाते हो ना, तो लेट्स से दिस एंगल बाइसेक्टर, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे रखते हो तो इन दैट केस का तो जो लास्ट का इमेज बनता है ना, तो वो कोइंसाइड कर जाता है, एंड दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज. ठीक है ना, दैट्स हाउ द प्रॉब्लम इज. ठीक है. अगर एंगल बाइसेक्टर पे रखोगे तो प्रॉब्लम आ जाता है. चलो, सो लेट्स प्रोसीड नाउ. इस केस में इमेजेस कितने बन गए? In this case it will be 7 images. ठीक है, 7 is right. 7 का विजुअलाइजेशन पता है क्या है? What I can do is that इसको लेके मैं एक इमेज यहाँ पे बना सकता हूँ, इसको लेके एक इमेज यहाँ बना सकता हूँ, एक इमेज. एक काम करो, इस पॉइंट को वर्टेक्स लेके, ठीक है ना. देखो ये जो पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया, इसके छत के साथ सपोज डिस्टेंस h है या a है, इस वाले वॉल के साथ b है और इस वाले वॉल के साथ c है. So let us say the distances from the walls are a, b and c. ठीक है ना. So let's say the distances from the walls are a, b and c. Suppose, or in that case form a cuboid of dimensions 2a, 2b and 2c. तो उस क्यूबॉइड के वर्टिसेस पे इमेज बनेगी. So the images will be formed on the vertices. तो कितने वर्टेक्स होते हैं? 8 होते हैं. अब 8 में से एक तो खुद ऑब्जेक्ट हो गया, तो बाकी बचा कितना? 7. So there will be total 7 images. So therefore total 7 images will be formed. ठीक है ना. देख लो. I hope you're getting this point. I mean, अगर डिस्टेंस ABC होता है तो इन दैट केस क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 2a, 2b, 2c ले लो, the images will be formed on the vertices. So therefore एक वर्टेक्स में खुद ऑब्जेक्ट है और बाकी सारे वर्टिसेस में इमेजेस. That's the point. Okay. एक बार फिर से बता दें, वो एक्चुअली पता है क्या है कि इसका फिगर बनाना बड़ा मुश्किल है. तो मैं एक फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. I don't know how much successful I will be.
तो दिस द थ्री सरफेसेस आर। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, इस ऑब्जेक्ट का यहां से डिस्टेंस मान लो a है, यहां से डिस्टेंस मान लो b है, ठीक है ना, और यहां से डिस्टेंस मान लो c है। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ये वाला पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये तीनों मिरर है। अब तो समझ में आ गया तीनों मिरर, एक ऊपर वाला, एक इस साइड वाला और एक बोर्ड के साथ वाला। तो ये जो डिस्टेंस है वो c है, इधर वाले से a है और इधर वाले से b। अब एक काम करो, इसको कंप्लीट कर दो। तो जितना डिस्टेंस है उतना ही ले लो, जितना डिस्टेंस है उतना ही ले लो, और जितना डिस्टेंस है उतना ही ले लो, और इस क्यूबॉइड को कंप्लीट कर लो। तो देखना ये सारे इमेजेस बने। वो एक उधर भी बनेगा और उसको दिखाना मुश्किल है, तो इसलिए मैं मेंशन नहीं कर रहा था। बेटा नहीं होगा। ये सारे इमेजेस बनेंगे। तो टोटल 8 में से एक ऑब्जेक्ट खुद बन गया, तो 8 वर्टिसेस है। आई थिंक दैट्स द आंसर। बट एक मिनट रुक जाओ, मैंने ना एक सेकंड रुक जाओ जरा। मैं अभी मैंने जो नंबर ऑफ इमेजेस थीटा बताया था, तो मुझे लगता है उल्टा बता। व्हाट डिड आई से? आई मीन k is equal to 360 by theta, है ना? k is equal to 360 by theta। और मैंने बोला कि अगर ऑड होगा तो क्या बताया कि n is equal to k बता दिया या क्या बता दिया? सर n equal to k। ओहो अच्छा अच्छा, मैंने उल्टा बता दिया। जस्ट चेंज द लॉजिक। में उल्टा कर लो, मैंने उल्टा बता दिया और उस पे भी क्वेश्चन भी उल्टा ही कर दिया। इफ n इज इवन तब n इज इक्वल टू k माइनस 1। ऑड पे होगा कि n इज इक्वल टू k और n इज इक्वल टू k माइनस 1 इफ ऑन एंगल बाइसेक्टर। मैंने इसको उल्टा बता दिया, वो मैंने गलती से स्वैप कर दिया, उसको ठीक कर लो, ठीक है ना? अब इसको याद रखने का तरीका भी है, वही मुझे सडनली स्ट्राइक किया कि मैंने उल्टा कैसे बता दिया। इसको याद रखने का तरीका बता देता हूं। इज दैट जैसे अगर 90 डिग्री पे मिरर लेते हो, 90 डिग्री, ठीक है ना? मतलब ये मैं तरीका बता रहा हूँ याद रखने के लिए कि बाई चांस एग्जाम में कई बार उल्टा हो जाता है, जैसे मैंने उल्टा कर दिया। तो 90 डिग्री पे रखते हो तो इन दैट केस क्या हो गया, ये इमेज हो गया। और ये इमेज देखो अभी भी इस मिरर के सामने है, तो एक ये इमेज बनेगा, फिर इसका एक ये इमेज बनेगा। तो ये इमेज जो है अभी भी देखो इस मिरर के सामने है, तो इसका जो बनेगा वो बनेगा यहीं पे बनेगा। तो हाउ मेनी आर वी गेटिंग देन? वी आर गेटिंग 3 एक्चुअली। इसलिए उस क्वेश्चन का आंसर चेंज कर लो, मैंने गलती से उल्टा कर दिया। थीटा प्लीज चेंज द आंसर्स। और n 10 20 30 40 50 60 70 आई थिंक ये लिए थे हमने, और एक शायद 90 लिए थे, एक 120, है ना? तो आंसर अब क्या हो जाएगा फिर? 10 के लिए हो गया 36 माइनस 1 35, 20 के लिए 17, 30 के लिए 11, 40 के लिए होगा 9 और 8, 50 के लिए हो जाएगा जो है तुम्हारा 7 और 6, ठीक है ना? और 60 के लिए हो जाएगा 6 यानी 5, ये हो गया 7, 27 6, ये होगा 5,
तो 5.5 5, 4, 90 के लिए 3, 120 के लिए 2, 3. ये आंसर्स आएंगे. इसको चेंज कर लो ठीक से, ठीक है ना. प्लीज चेंज इट अगेन. और ये हो गया तुम्हारा जो है 3D वाला. 3D वाले में क्या हो गया ना, टोटल इन दिस केस. खैर ये तो 3D वाले के लिए फॉर्मूला है ही नहीं. ये वाला फॉर्मूला तो, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं, इसको तो विजुअलाइजेशन करके करना पड़ा. तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस आ गया 7. इसका आंसर ठीक कर लो प्लीज, ठीक है ना. कोई मुझे सडनली बाद में कटता कि अरे 90 डिग्री पे तो 3 आता. और इसके लिए एंगल बाइसेक्टर जरूरी नहीं है. ये अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी रखोगे ना, तो एक यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा. तो इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज इन द एंगल बाइसेक्टर और अदरवाइज, ठीक है ना, आंसर हमेशा 3 ही आएंगे 90 डिग्री की बात कर, ठीक है ना. तो मैंने इसलिए लॉजिक गलती से उल्टा बता दिया. चलो कोई नहीं, इसको ठीक कर लो. वैसे इस पे कोई क्वेश्चन तो आते नहीं है, बट देन यू नेवर नो क्या होता है नहीं होता है ना. वैसे में भी आज चलो आज तो टाइम है नहीं, बट मे बी आई कैन जस्ट गिव यू अ क्वेश्चन क्विकली. आई मीन दिस कुड बी फॉर होमवर्क, या अगर कुछ लोग अभी सॉल्व करना तो अभी सॉल्व कर सकते. सपोज 343 सेंटीमीटर का एक मिरर है और ये भी पैरेलल है, और इनका जो सेपरेशन है वो है 4 सेंटीमीटर. बिल्कुल एज पे एक रे आया है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 37 डिग्री. ठीक है ना, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 37 डिग्री. You have to tell how many, including this, ये first reflection. So this is the first reflection. तो question क्या है? Question is including this, इसको include करके total how many reflections? Total how many reflections? ठीक है. And which will be the last reflection? ये mirror A, ये mirror B. Last reflection is in which mirror? ठीक है. Last reflection is in which mirror? So these are the 2 questions. I mean, ठीक है. Maybe you can keep it for homework. तो ये एक्चुअल जेई में आया हुआ है क्वेश्चन है. तभी मैंने बोला ना कि लाइक जेई में सिलेबस में तो देखो, अगर सीबीएसई सिलेबस देखे तो कर्व मिरर है, वहां से स्टार्ट होता है. प्लेन मिरर सीबीएसई सिलेबस में नहीं, लेकिन ये जेई में आया हुआ है क्वेश्चन है आईआईटी वाले में. अब मतलब देयरफॉर इट्स नॉट वेरी वेल डिफाइंड, तो इसलिए प्लेन मिरर भी हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है ना. चलो आज के लिए इतना ही करते हैं. कि दिस इज होमवर्क काम है इसमें. हां, वेलोसिटी का. ना ये तो लाइट है. अच्छा सॉरी सर. ऑप्टिक्स चल रहा है ना, मुझे तो प्रोजेक्टाइल बनाने लग रहा है. चलो, तो लाइक ऑप्टिक्स है तो लाइट आएगा तो ऐसे करके रिफ्लेक्ट करते करते चला जाएगा. आई हैव ऑलरेडी गॉट वन आंसर फ्रॉम आर्यन एंड दैट इज 114 एंड मिरर बी. चलो लेट्स पुट दैट असाइड राइट नाउ. वी विल डिस्कस दैट मे बी इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज ऑन मंडे. इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद मंडे ऑब्वियसली हम लोग कर्व्ड मिरर की स्टार्ट करेंगे. ठीक है. चलो आज के लिए इतना ही, फिर वी विल कैरी ऑन इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. आई होप वो करेक्शन कर लिया होगा. ठीक है. ओके बेटे. थैंक यू सर. ओके बेटे, वेलकम. थैंक यू सर. ओके, हैव अ गुड डे. ओके बेटे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.